ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ जुड़ के बहन का समा नसीब होया। रब्बी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी के चरणों में जुड़ के वाहिगुरू नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज का यह पावन बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने रहमत करके बख्शे। सतगुरु की कृपा करदियां समझाउंदे ने कि असीं सब उस परमेश्वर दे बालक हाँ, बच्चे हाँ। वो परमेश्वर साडा सब दा पिता है ते उस पिता परमेश्वर दे कोलों सतगुरु कहंदे ये दात मंग लै, ये बख्शिश मंग लै कि मैनू सुमत बख्शो, जिस सदका मैं हमेशा वाहिगुरू दे गुण गावां, जिस सदका हमेशा उसनूं सिमर सकां, उस अगम अपार परमेश्वर नूं। सतगुरु कहंदे मेरे सतगुर अपने बालिक राखो लीला धार। हे सच्चे पातशाह अपने बालकां नूं, अपने बच्चों नूं तू आप अपनी लीला धार के, तू आप अपनी रहमत करके रख लै। अपने आप नूं उस वाहिगुरू दा बालक, उस परमेश्वर दा बच्चा जान लेना। जदों असीं खुद नूं उस दा बच्चा जानदे हां, उहदा बालक जानदे हां, उसनूं ही मालक समझदे हां, उसनूं ही पिता परमेश्वर जानदे हां, तां साडे जीवन दे अंदर, साडे जीवन दे ढंग अंदर बहुत बदलाव आ जांदा है। उस परमेश्वर नूं पिता जानन वास्ते, उसनूं ही अपना मालक, अपना सब कुछ जानन लई इस संसार अंदर जिहड़े साडे रिश्ते ने, उन्हां रिश्तियां नूं पौड़ी दी तरह इस्तेमाल कर लईदा। उन्हां रिश्तियां नूं साधन दी तरह, जिवें माँ है, बाप है, साडे भैण भाई ने, साडे होर संबंध ने। सतगुरु जी ने समझाया, सतगुरु कहंदे कि वो परमेश्वर ही पिता है, वो परमेश्वर ही माता है, वो परमेश्वर ही साडा भैण भाई बंधप सब कुछ वही है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू ही सब कुछ। वो वाहिगुरू ही मेरा सब कुछ है, उस तो बिना होर कुछ नहीं। इस संग साथ सब ओही। जदों अपनी मां दे विचों ओ परमेश्वर दिसन लग जावे, नहीं भी दिस रहा कोई नहीं, पर इसनूं मान लेना, इसनूं जान लेना कि मां दे अंदर परमेश्वर वसदा है, पिता दे अंदर वो परमेश्वर वसदा है। जदों माँ बाप दे अंदरों
ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਲਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਠਿਨ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਾਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਨ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਿਕ ਰਾਖੋ ਲੀਲਾ ਧਾਰ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਲਕ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਮ ਬਾਲਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਇਆਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਨਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਡ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਲਕ, ਅਣਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ,
कि कई बारी ऐसा लोग अक्सर कहते हैं जी पहला जो साडा समा सी उदों इन्ने असी तेज नहीं से होया करते, पर ख्याल रखना हर माँ बाप साडे बजुर्गों के उन्होंने भी गां माँ बाप सदियां तो हर माँ बाप को यही लगता है कि साडी अगली पीढ़ी साडे बच्चे बड़े तेज ने। साडे बच्चों के जो बच्चे होणगे वो भी यही कहेंगे कि बड़े तेज ने, बड़े तेज ने। पर असी लोग इस गल कदे समझ ही नहीं पाते कि वो तेज क्यों ने। वो तेज सानू इस करके लगते हैं क्योंकि वो साडे तो पैदा होए ने, साडी जो मत है जो असी जानते हैं असी उही उन्होंने दिता है, तो वो बच्चे उस तो अगांह कंटीन्यू करते हैं। वो साडे वांग उत्थों ही नहीं शुरू करते जिथों असी शुरू किया सी। बस यही एक अंतर है मनुख विच ते पशुआं विच। पशुआं दा जीवन उत्थों ही शुरू हुंदा है जिथों पशु दे माँ बाप दा शुरू होया सी, उत्थों ही। उहदे लई उहनूं शुरू तो शुरू करना पैंदा है, पर सानू मनुखां नूं शुरू तो शुरू नहीं करना पैंदा। असी जो कुछ सिक्ख्या हुंदा, समझिया हुंदा, जो कुछ अनुभव किया हुंदा, जो कुछ चीज़ां साडे सामने हुंदियां, असी उत्थों ही अपने बच्चे नूं शुरू कराउंदे हां। इसलिए वो बच्चा तेज होंदा है। अगां जो वो समझेगा, सीखेगा, अपने जीवन में अनुभव करेगा, उहदे बच्चे उत्थों कंटिन्यू करनगे। ये सिलसिला लगातार ऐसे चलता। इहनूं ते विकास कहंदे ने। यही तो विकास है, मनुख जाति का विकास, कि साडा दिमाग उत्थों कंटिन्यू कर लेंदा उस चीज़ नूं। पर धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। धर्म के मामले में नहीं, इत्थे शुरू तो शुरू करना पैंदा है। इत्थे असी अनजान ही हाँ, इत्थे सानू कुछ नहीं पता है। इसलिए इहदे संबंध में, धर्म के संबंध में दुनिया के विच हज़ारां धर्म ग्रंथ ने, ते उन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वाले लखां करोड़ां लोग ने, पर फिर भी लोग अनजान दे अनजान ही ने। फिर भी वो समझ नहीं पाते, फिर भी अपने आप को बालक ही देखते हैं। असी उस परमेश्वर दे सामने असी कुछ भी नहीं नज़र आते, कि सानू कुछ पता ही नहीं। इस करके सतगुरु कहते हम बारक हर प्रभ के हैं याने, असी बालक हाँ, अनजान हाँ। सानू वो सूझ नहीं है, सानू वो समझ नहीं है। इस करके सतगुरु समझाते, हे सच्चे पातशाह देहो समत, सानू समत देवो, सानू मत देवो। इस मत नाल सदा गुण गावां, मैं हमेशा तुहाडे गुण गाउंदा रहां। हे वाहिगुरू मैं हमेशा तेरे गुण गावां, मैनू ये अकल दे, मैनू ये अकल दे, तू कृपा कर तेरे गुण गा सकां। क्योंकि मेरे को जिहड़ी मत है वो मत संसार दे बारे जानदी है, वो मत संसार बारे। सानू जो मत है असी उही मत अपने बच्चे नूं दिन्ने आ। वो सानू वेखदा है जो कुछ असी करते हैं, जो कुछ असी जिहो जिहा व्यवहार करते हैं, साडा बच्चा उही कुछ वेखदा, उही कुछ सिखदा। वो कितों बाहरों नहीं सीख के आ जाता, बहुत सारिया चीज़ां वो घर विचों ही देखदा माँ बाप दे कोलों। असी कई बार कहते असी तो ये गल इनू सिखाई भी नहीं, तुसी नहीं सिखाई, पर उन्हें देख के सीख लई, उन्हें वेख के सीख लिया। बहुत कुछ वो साडे कोलों देख के सीखदा है। कुछ चीज़ां साडे जो जीन्स विचों उसनूं मिलदियां, बाकी वो साडे तो देख के सीख लैंदा है। होर जो ने वो समाज विचों सीख लैंदा है, होर थोड़ा बहुत बचदा है वो स्कूलों कालजां विचों सीख लैंदा है। सब कुछ संसार विचों ही उसने देख के समझिया जानिया, सब कुछ। धर्म के संबंध विच भी वो उन्ना की जानदा है जिन्ना को असी करदे हां जां विचरदे हां। जिन्ना क असी पूजा पाठ करते हैं वो देख लेंदा कि की है, वो वेख लेंदा कि की कर रहे ने, तो उन्ना की वो सीख लेंदा। इसे तरह सदियों तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही सिलसिला चलता आ रहा है।
इसलिए सानू जो बहुती मत है वो माया वाली है, क्योंकि हर माँ बाप माया उत्ते ज्यादा जोर देंदे ने। हर माँ बाप कि किस तरह पैसा कमाना है, किस तरह पैसे नूं सामभना है, किस तरह चीज़ां नूं सामभना है। हर आदमी हर औरत इस चीज़ के उपर ही हमेशा तो जोर देंदे आए ने। धर्म के मामले में उन्होंने बहुता जोर कदे दिता ही नहीं सी। इसलिए तुसी अक्सर देखोगे कि बच्चा नच्चण गाउण वाले पासे नूं छेती लग जाता है। हजे वो 2-2.5 साल का ही है तो वह नच्चण लग जाता है। वो देखता है टीवी ते देखता है, वो देखता है लोगों नूं, क्योंकि लोग जिथे लगे ने वो वेख के उहो जिहा सिख लैंदा है, जान लैंदा है। माँ बाप वेख के बड़े खुश होंदे ने कि साडा बच्चा तो किवें नच्चण गाउण लग पिया। उही बच्चा जदों तुहानूं गुरुद्वारे देखदा है, मत्था टेकदिआं पाठ करदिआं हत्थ विच गुटका लैके वो वैसा करन लग जांदा है। उसे तरह गुटका फड़ लैंदा हत्थ विच, उसे तरह साडे वांग धार्मिक कर्म करन लग जांदा है। ख्याल रखना, ना वो धार्मिक कर्म कर रहा है, ना वो दुनियावी कर्म कर रहा है, वो नकल कर रहा है। बस ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ थोड़ी ना ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ पूजा पाठ ਦੀ है, ना ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਵੈਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। बचपन ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, पाठ करता सी जां तुहानूं देख के नकल करता सी, वो जवानी विच भी वैसा करेगा जां नहीं, ये फिर पता चलेगा। इसलिए उहदी धार्मिकता बचपन दे विच तां सिर्फ वो एक खेड है, उहदे लई खेल तो वध के कुछ भी नहीं, पर बाद विच पता चलना है कि वो की है। इसलिए बहुती वेरां अपने बच्चे नूं जो असीं करदे हां उही वो सिखेगा। ते वो ज़्यादातर मत वड्डा हो के वो माया वाली ही धारण करता है। ज़्यादातर देखण विच यही आउंदा है कि वो उही कुछ सिखदा है जो माँ बाप करते रहे ने। ज़्यादातर माँ बाप ने की कीता, पैसे के संबंध विच गल्लां, घर बार दे झगड़े झमेलियां दियां, इधर भैणां भाईआं दियां, इधर उधर दियां, माया दियां चीज़ां दियां, कारोबार दियां, बस यही ज़्यादातर जोर, ज़्यादातर फोकस साडा इन्हां चीज़ां दे उत्ते रहिंदा है। इस करके बच्चा इस पासे नूं तुरदा है तां वो भी फिर वड्डा हो के पैसा कमाउण, चीज़ां हासिल करन, धन दौलत इधरले पासे नूं ही तुरदा है। इस करके सतगुरु कहंदे बंदे कोल जिहड़ी सुमत है, जिहड़ी मत है, वो माया वाली है, वो धर्म वाली नहीं है, वो माया वाली है। धर्म किवें कमाउणा ये मत नहीं है, माया किवें कमाउणी है ये मत है। ये मत तो बाप भी दिंदा है, ये मत तो माँ भी दिंदी है कि चीज़ां किवें सांभी दियां, पैसा किवें संभालीदा है। बच्चे नूं झिड़कदे भी ने कि एवें पैसे खराब नहीं करीदे, पर धर्म के संबंध विच नहीं वो कदे झिड़कदे, क्योंकि जिन्ना को वो आप जानते हैं उन्ना की ही वो करते हैं। इसलिए सतगुरु कहंदे हे सच्चे पातशाह मैनू तू मत दे, मैं तेरे गुण गावां, मैनू ये अकल दे सुमत सदा गुण गावां, मेरे ठाकुर अगम अपार। हे अगम अपार वाहिगुरू मैनू अपनी मत दे कि मैं तैनू सिमर सकां। ऐसी मत दीजा मेरे ठाकुर, ऐसी मत देवो कि मैं तुहानू गावां। सा मत देहो दयाल प्रभ जित तो मैं आराधना। गुरु नानक साहब कहते गुरा एक दे बुझाई, बुझाई मतलब समझ केड़ी, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। क्यों वाहिगुरू विसरे ना, वो परमेश्वर भुले ना। हे सच्चे पातशाह तू बेअंत अविगत अगोचर, तू बहुत बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं पाया जा सकता। असी तेरा अंत, तेरा कोई पारावार नहीं पा सकते। अविगत, वो अविगत है। जिमें असी मनुख नूं व्यक्ति कहने हैं जी, एक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब जो व्यक्त है, जो नज़र आ रहा है। अव्यक्त
वो परमात्मा जो नज़र नहीं आता, वो अव्यक्त अविगत, वो जिहड़ा साडी पकड़ विच नहीं आता है, अविगत अगोचर, जिन्हों साडियां अखां वेख ना सकण, जिन्हों साडे कंन सुन ना सकण, जिसनों साडे हथ पैर छू ना सकण, पैर साडे दौड़ के जिहदे तक पहुँच ना कर सकण, उसनूं अगोचर कहंदे ने। जिहड़ा साडे इंद्रियां दी पहुँच तो परे, जो साडे इंद्रियां दी अखां हथ पैर कंन नक जुबान साडी चमड़ी, जो इहदी पहुँच तो परे है, इहदे संपर्क विच नहीं आउंदा। साडी चमड़ी भी महसूस कर लैंदी है, जिवें गर्मी सर्दी महसूस करती है, किसी की मौजूदगी नूं किसी की आहट नूं महसूस कर लैंदी है। साडी जुबान खाण पीण दे चीज़ां दा स्वाद जान लैंदी है, जैसा भी होवे। साडी जुबान बोल के भी कुछ प्रगट करती है, कुछ बयान करती है। सतगुरु कहते उस वाहिगुरू नूं ना बोल के बयान किया जा सकता है, ना उहदा कोई रस जिहड़ा है वो जुबान राही दस्सिया जा सकता है, ना अखां राही उस नूं वेख्या जा सकता है, ना नक राही उहदी कोई खुशबू लई जा सकती है। इसलिए वो इंद्रियां दी पहुँच तो परे है, उस नूं अगोचर कहंदे ने। तू बेअंत अविगत अगोचर, ये सब तेरा आकार। हे वाहिगुरू, ये सारा कुछ तेरा है। तू बंदे दे अंदर वसदा है, पर फिर भी बंदे दी पहुँच तो परे है। तू कण कण विच वसदा है, हर थां मौजूद है, फिर भी बंदे दी पहुँच विच नहीं है। साडे तो फिर भी दूर, नेड़े हो के भी दूर। ये सारा कुछ, ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये तेरा आकार है। ये सब तेरा आकार। क्या हम जंत करें चतुराई। हे सच्चे पातशाह, असी जीव जंत की चतुराई कर सकते हैं, तेरे अगे नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया अगे असी बड़े चतुर बन जाते हैं, पर वाहिगुरू दे अगे साडी चतुराई नहीं चलती। उहदे अगे साडा कोई जोर नहीं चलता। साडी चतुरता उहदे अगे किसे काम दी नहीं है, क्योंकि वह साडी चतुरता नूं जाणदा है। जिवें असी दुनिया सामने जो मर्जी बन जाइए, पर अपने किसी मित्र सामने असी जे बन के भी आउण दा यतन करदे ना, तो वह साडे ते हस पैंदा है, क्योंकि उहनूं पता है, उहनूं साडी रग रग दा पता है, वह साडे अंदर दी गल नूं जाणदा है। इसलिए असी अपने मित्र सज्जन सामने उहो जिहा प्रगट नहीं हुंदे जिहो जे असी दुनिया सामने प्रगट हुंदे आ, क्योंकि उहनूं साडा सब पता है, साडे चंगे मंदे सब कर्म पता है। बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर साडे बारे सब जानदा है, साडे बारे सब कुछ पता है। साडा पाप भी ते साडा पुण्य भी, साडा मन भी ते साडा तन भी, उन्हें सब देखिया होया। वो साडे रग रेशे तो पूरी तरह वाकफ है, इसलिए उहदे अगे साडी चतुराई नहीं चलती, उहदे अगे साडी चतुरता फेल। सतगुरु कहते चतुराई सियाणपां किते काम ना आई है, उहदे अगे नहीं काम आउंदियां। इसलिए हम जंत करें चतुराई, जां सब किछ तुझे मुझार। हे सच्चे पातशाह, जद सब कुछ तेरे विच ही है, तेरे सामने है, तेरे विचकार ही है सब कुछ, क्योंकि असी सब जीव जंत तेरे विच ही वसदे हैं। साडे सब कर्म दा, हर कर्म दा तैनूं पता है। तेरे तो असी लुको भी कित्थे सकते हैं। असी किसी बंदे तो लुको सकते हैं, किसी दूसरे दे कोलों पर्दा पा सकते हैं, पर उहदे तो कित्थे पर्दा पावांगे। इसलिए क्योंकि सब कुछ उहदे विच ही है। मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला धार। हे सच्चे पातशाह, अपने बालकां नूं आप किरपा करके रख, आप अपनी लीला करके दे हो समत सदा गुण गावां, मेरे ठाकुर अगम अपार। हे वाहिगुरू, मैनू समत दे, मैं हमेशा तेरे गुण गाउंदा रहाओ। जैसे जनन जठर में रहता, वो रहता नाम आधार। सतगुरु कहते जिमें प्राणी माँ के गर्भ दे विच रहिंदा, असीं सब अपनी माँ के गर्भ विच रहे हैं, तो उस गर्भ दे विच सतगुरु कहते बंदा वाहिगुरू दे नाम दे आसरे रहा, परमेश्वर दे आसरे।
जैसे जनन जठर में रहता, जठर में प्राणी वो रहता नाम आधार। वो वाहिगुरू दे नाम दे आसरे रहा, उत्थे होर आसरा है भी की है सानू? मां दे गर्भ विच किहड़ा आसरा सी सानू? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ वाहिगुरू तो बिना। होर वाहिगुरू तो बिना उत्थे की आसरा सी? कुछ भी नहीं सी। वो परमेश्वर ही साडा सहायक सी। इसलिए सतगुरु कहते आनंद करै सास सास संभारै। मां दे गर्भ दे विच उत्थे बच्चा आनंद दे नाल है ते हर साह नाल उस वाहिगुरू नूं संभारदा है, उस परमेश्वर नूं संभारदा है। सदियां तो धर्म इस गल विच विश्वास रखदा आया है, सदियां तो, कि मां दे गर्भ दे विच बंदा परमात्मा नूं सिमरदा है। धर्म ने जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने, खास करके भारत दे पुराने तो पुराने ग्रंथां विच भी इस गल का जिक्र जरूर मिलता है कि मां दे गर्भ दे विच बच्चा परमात्मा नूं सिमरदा है। विज्ञान इस नूं किसी होर दृष्टि नाल देखदा है, वो एक वक्री गल है, पर धर्म इस गल नूं हमेशा तो ही इस दृष्टि तो ही देखदा रहा कि मां दे गर्भ विच बच्चा परमात्मा नूं सिमरदा है ते इहदे आसरे ही रहिंदा है। इस करके उस नूं जो पेट दी अगन हुंदी है ना, जठर अगन, वो उस नूं पोह नहीं पांदी, क्योंकि पेट दे विच बड़ी अगन है, बड़ी तपश है, ते उस तपश विच बचे रहना बहुत औखा काम हुंदा है। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे उत्थे बड़े आनंद दे नाल है। आनंद करे सास सास संभारै, ना पोह है अगनार। अगन जिहड़ी है, अगनार मतलब अग, कि पेट दी अग उत्थे पहुंदी होई नहीं, उन्होंने छू भी नहीं पाती। वो वाहिगुरू बच्चे नूं उत्थे आप हथ दे के जिवें बचा लैंदा है। पर धन पर दारा पर निंदा इनस्यों प्रीत निवार। सतगुरु कहंदे जो तू पराया धन उधर तेरा ध्यान है, पर इस्त्री वाल तेरा ध्यान है, दूसरियां दी निंदा करन वाल तेरा ध्यान है, इधरों अपनी प्रीत नूं तोड़ लै। जो इस पासे तू लगा होया ना, इधरों अपने ध्यान नूं हटा। दूसरे दे धन विच सुख मिलण वाला नहीं, दूसरे दे घर विच किन्ना धन है, किन्नी दौलत है, उहदे विचों सानू ते सुख हासिल होना नहीं। दूसरा बंदा किन्नी कमाई करदा है, सानू उहदा की लाभ? जे कोई लाभ है तो ठीक है, सोची जाओ कि दूसरिਆਂ ਦੇ घर विच बड़ी दौलत है, दूसरिਆਂ ਦੇ घर विच बड़ा धन है, इंज करन नाल सानू की होना है? पर लोग करते हैं। अमीर तो अमीर आदमी भी यही सोचता रहिंदा है कि दूसरिਆਂ ਦੇ घर मेरे नालों ज़्यादा धन है। हर आदमी, हर किसी नूं ऐसा ही लगता है। ख्याल रखना कि जिवें असीं सोचते हैं ना कि मेरे कोल थोड़ा है, इसे तरह दूसरा भी यही सोचता है कि मेरे कोल थोड़ा है। साडा ध्यान दूसरिਆਂ ਦੇ धन उत्ते रहिंदा है, उन्हां दा ध्यान साडे धन उत्ते रहिंदा है। सानू अपने लखां भी थोड़े लगदे ने। आ तुसीं वेख्या ही है, आ जदों दीयां पेंशनां बंद होईयां उदों दा आ साडे विधायकां दा की हाल होया कि उन्हां नूं 70-80 हज़ार रुपया पेंशन भी थोड़ी लगदी है कि 60-70 हज़ार रुपया पेंशन महीने की बिना किसी गल तो बहुत थोड़ी जापदी कि इन्नी थोड़ी, बस 60-70 हज़ार। उन्हां दी मूर्खता ते हासा आउंदा है कि वो भी लोग ने जिहड़े 5-10 हज़ार ते गुजारा करते हैं, अपने पूरे महीने का वो इहदे विच ही उन्होंने गुजारा करना है, इहदे विच ही बच्चों दी फीसां देणियां, इहदे विच ही घर दा रोटी पानी चलाउणा है, इहदे विच ही रिश्तेदारियां दे विआह शादी देखने ने। तो दूसरे पासे 70 हज़ार रुपया पेंशन लैण वाला आदमी वो कहंदा जी साडी पेंशन घटदी जी, थोड़ा होया। आ पिछे जे लोगों ने धरना दिता कि जी साडियां पेंशनां थोड़ियां ने, किन्नियां ने जी 50 हज़ार, बस 50 हज़ार, बस जी 50 हज़ार है जी। हुण तुसीं इस तो अंदाज़ा ला सकते हो कि बंदे नूं जिन्ना भी मिलता है उन्होंने थोड़ा लगता है, उन्हें लगता है कि थोड़ा है। सब दी हालत ऐसी ही है, जिहदे कोल थोड़ा है उहदे कोल तो है ही,
पर जिहदे कोल ज़्यादा है उसनूं भी थोड़ा लग रहा है। 5-10 हज़ार कमाउण वाले दी तो गल समझ आउंदी कि हाँ जी इहदे कोल थोड़ा है, पर जिहड़ा ਲੱਖਾਂ रुपया पेंशन लै रहा वो कहंदा जी ये भी थोड़ी है। सतगुरु समझाउंदे कि बंदे दा ध्यान पराए धन विच रहिंदा है कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा मिल रहा है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ ज़्यादा हासिल हो रहा है। पर धन पर दारा, फिर दूसरे दी इस्तरी दूसरे दा रूप तकदा, पर निंदा दूसरिਆਂ दी निंदा करदा, निंदा भी दूसरे दी, अपनी निंदा भी नहीं सुन सकदा। पर निंदा इनस्यों प्रीत निवार, सतगुरु कहंदे इन्हां नाल जिहड़ी तू प्रीत पाई है ना इनू छड्ड। चरण कमल सेवी रिद अंतर, वाहिगुरू दे चरण कमलां नूं अपने हिरदे विच सेव। गुर पूरे कै आधार, पूरे गुरु दे चरणां दा आसरा लै, उहदा आधार धारण कर। गृह मंदिर महलां जो दिसैं, ये घर बार ये महल माड़ियां ये सब कुछ जो कुछ भी नज़र आउंदा ना कोई संगार, इन्हां विचों कोई साथी नहीं हुंदा, इन्हां विचों कोई साडे संग नहीं जांदा, ये घर इत्थे ही रह जांदे ने। ये सब महल माड़ियां इत्थे ही धरियां रह जांदियां, एक दिन ये सब खंडर हो जाते हैं। इस करके सतगुरु कहते कोई इन्हां दे नाल इन्हां विचों साडे संग नहीं निभदा। जब लग जीवै कली काल में, जदों तक इस संसार दे विच तूं जिउणा, जदों तक असीं साह लै रहे हैं, जदों तक साडे साह चल रहे ने, तदों तक जन नानक नाम संभार। सतगुरु कहते वाहिगुरू दे नाम नूं संभार जदों तक तूं जी रहा है, उदों तक। ये नहीं कि बस ठीक है 2-4 मिनट रब रब कर लिया चलो गल खत्म। सतगुरु कहते जदों तक जी रहे हैं उदों तक। कदों तक जी रहे हैं ये कोई भरोसा नहीं, इस गल का कोई भरोसा नहीं है। बस जी रहे हैं तो जी रहे हैं, साह आ रहा है तो जीवन की गड्डी चल रही है, साह रुक गया तो नाल ही खत्म कहानी। इसलिए सतगुरु कहते जब लग जीवै कली काल में, जन नानक नाम समार। उस वाहिगुरू नूं सिमर दे रहीए। सतगुरु रहमत करे कि उस परमेश्वर नूं हमेशा हर साह नाल असीं सिमरदे रहीए, क्योंकि की भरोसा है कि किहड़ा साह साडा आखिरी साह होना है। होईयां भुल्लां लिखिवा सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शण जोग, भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।